Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor by Newton School, and in this video, that is day 26 of this playlist dynamic programming, we are going to see optimized memoization of palindrome partitioning. Okay, so previous video में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था MCM मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, उसका हमने सारा जितना भी हम उसके बारे में पढ़ सकते थे सब पढ़ लिया था, उसका रिकर्जन पढ़ लिया था, उसकी डीपी पढ़ ली थी. देन आफ्टर दैट हम मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के क्या देख रहे थे, वेरिएशन क्वेश्चन. जितने भी वेरिएशन क्वेश्चन हो सकते थे हम सब देखने वाले हैं. तो उसमें हमने पहला क्वेश्चन पकड़ा था पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग. मैंने पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग की प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसका रिकर्जन वर्जन जस्ट प्रीवियस वीडियो में बताया है. तो दैट वीडियो इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ दिस वीडियो. जस्ट गो एंड वॉच दैट इफ यू हैवंट वॉच दैट. ओके, इस वीडियो में हम उसी रिकर्जन के कोड को दोबारा ब्रीफ में समझेंगे और उसके बाद रिकर्जन में हम कैसे उसको डीपी बनाते हैं सिंपली मेमोजाइज करके. ठीक है, तो हम वही करेंगे. और उस मेमोजाइजेशन में भी मैंने आगे ब्रैकेट में ऑप्टिमाइजेशन लिख रखा है, ऑप्टिमाइज वर्जन. ठीक है, तो हम ऑप्टिमाइज्ड वर्जन देखने वाले हैं उसका. ठीक है, फाइन. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज न्यूटन स्कूल. So as we all know, Newton School is an e-learning platform which have different programs especially designed for you. Their first program is Pay After Placement program. So for that you can also see the title here, that application for full stack development course September batch is open right now. So what they do is they will teach you for 6 months, they will teach you full stack development and they will make you a full stack developer. And not only this, after that they will also get you placed in these companies like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, Byju's. So they have tie up with all these companies. So firstly they will make you a full stack developer and then they will get you placed in these companies for minimum 5 lakh CTC. And most amazing thing about this program is you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in these companies. Okay, if you want to know more about this program or if you want to apply for this program, you can just come to newtonschool.co and check here in apply now button. Okay, second thing they have for you is Launchpad initiative, under which they are providing you free courses, absolutely free courses for learning purposes. And after completion of any course you will also get certificates from Newton School. Okay, so you just need to come to their website, log in or sign up for free and start learning. There are different courses for you via which you can learn different texts for free. So just come to newtonschool.co and check there both the programs. At the end, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go to YouTube, subscribe this YouTube channel and just get the regular updates by subscribing. And right now we are like learning dynamic programming from scratch, and we already have 25 videos in the playlist. So if you want to learn dynamic programming from scratch, you can begin from here. Now let's just see our today's video, that is palindrome partitioning memoization. ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसा बताया रिकर्जन ऑलरेडी बता दिया है. तो अगर आपने ऑब्वियसली वो वीडियो नहीं देखी तो यू हैव टू गो टू प्रीवियस वीडियो एंड यू हैव टू वॉच दैट वीडियो. ठीक है, दैट इज फाइन. बट मैं ब्रीफ में तुमको एक बार रिकर्जन का कोड समझाता हूँ. ठीक है, तो ये रहा रिकर्जन का कोड. एंड यहाँ पे इस पैलिंड्रोम करके एक फंक्शन है जिसमें मैं सिंपली क्या करूँगा, मेरे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है. ठीक है, कोई भी एक स्ट्रिंग है मेरे पास, और उसमें फंक्शन में देख रहे होगे तुम तीन चीज़ें हैं, एक स्ट्रिंग एंड देन 2 इंटीजर्स i एंड j. तो एक स्ट्रिंग है ये, i जो है उस सेम स्ट्रिंग का लेफ्ट एंड है और j जो है एक राइट इंडेक्स है. ठीक है, तो i जो है लेफ्ट इंडेक्स है और j जो है वो राइट इंडेक्स है. लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट इंडेक्स में नहीं बोल रहा हूँ. ठीक है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि i लेफ्ट इंडेक्स है और j राइट इंडेक्स है, राइट एंड लेफ्ट एंड. ठीक है, राइट एंड एंड लेफ्ट एंड ऑफ द करेंट स्ट्रिंग विच वी हैव टू चेक, और यू कैन से ऑफ द करेंट पार्टीशन विच वी हैव टू चेक. ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये तुम्हारा सिंपली क्या चेक करेगा, जो तुम्हारी स्ट्रिंग में i से j लेंथ की जो करंट पार्टीशन है दैट इज सब स्ट्रिंग, वो पैलिंड्रोम है या नहीं. ठीक है, और ये आई गेस मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है, इतना फंक्शन यू कैन इजीली सी दैट और इतना आता होगा, आई होप सो. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रिकर्स फॉर एवरी पॉसिबल पार्टीशन. हमें जितने भी पार्टीशन पॉसिबल हो सकते हैं एक सिंगल स्ट्रिंग में, वो सारे के सारे पार्टीशन बनाने हैं. और उन सारे पार्टीशंस को बनाने के बाद हमें उनमें से मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस सच दैट ऑल द पार्टीशंस बिकम पैलिंड्रोम, उसका आंसर निकालना है. ठीक है, तो वो हम सिंपली कैसे करते थे, हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रिंग एस थी, अगर मान लो ए बी सी बी ए, तो हम करते क्या थे एग्जैक्टली, अगर ये कंप्लीट स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, ठीक है, तो हमें कितने नंबर ऑफ पार्टीशन चाहिए, 0, क्योंकि ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, हमें एक भी पार्टीशन नहीं करना. तो ये वाला केस कहाँ पे आ जाएगा, मेरे बेस केस में देखो, रिकर्जन फंक्शन के अंदर मेरा बेस केस क्या लिखा है,
जो मेरी करंट मैं जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस निकाल रहा हूँ दैट इज स्ट्रिंग आई एंड जे, और राइट नाउ आई और जे मेरा क्या है, सिंपली कंप्लीट स्ट्रिंग। तो अगर मेरी कंप्लीट स्ट्रिंग जो करंट स्ट्रिंग या फिर जो करंट पार्टीशन में चेक कर रहा हूँ वो ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, तो सिंपली आई हैव टू रिटर्न 0। सेकेंड केस क्या है, बेस केस में मेरे पास आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जे। तो ये कौन सा केस है, ये वाला केस देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जे है, इट मीन्स कि जो तुम्हारा आई और जे यहीं पे है, ठीक है। एक केस जब आई और जे इक्वल है, तो तुम्हारे पास सिंपली मिला क्या, तुम्हें अपनी स्ट्रिंग में करंट पार्टीशन में खाली एक कैरेक्टर मिला, और सिंगल कैरेक्टर इज ऑलवेज अ पैलिंड्रोम। आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस। सिंगल कैरेक्टर हमेशा एक पैलिंड्रोम ही होता है, ठीक है। दैट्स वाई इसमें भी हमें 0 पार्टीशन लगेंगे, और दैट्स वाई आई इज इक्वल्स टू जे इज ऑल्सो अ बेस केस। सेकेंड थिंग, आई ग्रेटर देन जे। आई ग्रेटर देन जे अगर हुआ, इट मीन्स माई स्ट्रिंग इज एम्प्टी। भाई क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था जो आई है वो करंट पार्टीशन का लेफ्ट एंड है और जे जो है वो राइट एंड है, ठीक है। दैट्स वाई। तो बेस केस आई गेस यहाँ पे समझ में आ गया कि दैट ये बेस केस है, और बेस केस में हम 0 रिटर्न कर रहे हैं अपने रिकर्जन में। उसके नीचे हमें क्या करना था, हमें करंट स्ट्रिंग थी और मान लो ये थी, ठीक है, और इसमें हम नंबर ऑफ पार्टीशंस निकाल लेते हैं ताकि सारे के सारे पार्टीशंस पैलिंड्रोम बन जाए। अब हमें करना क्या था एग्जैक्टली, ये हमारा पूरा पूरा आई था, ये आई था और ये जे था। हम कर क्या रहते, हम सारे के सारे पार्टीशन करके देखते थे। तो पहला पार्टीशन ऑब्वियसली जब होगा तो ये स्ट्रिंग 2 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो जाएगी। अभी ये करंट एक प्रॉब्लम है पी, मैंने सपोज पार्टीशन यहाँ किया, 2 प्रॉब्लम बनी P1 P2। तो इसका मैं सिंपली क्या करूँगा, ये P1 का आंसर प्लस P2 का आंसर, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन फॉर दिस मच स्ट्रिंग, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन फॉर दिस मच स्ट्रिंग प्लस 1, क्योंकि मैंने एक पार्टीशन इन दोनों को डिवाइड करने के लिए किया है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि अगर मैं पार्टीशन यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं फिर समझाता हूँ, अगर मैं पार्टीशन यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस कंप्लीट एस का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है P1 प्लस P2 प्लस 1, ठीक है। ये तो आ गया मेरा केस जब मैं पार्टीशन यहाँ से कर रहा हूँ। एक केस आएगा जब यहाँ से कर रहा हूँ, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। तो मुझे सारी पॉसिबिलिटीज़ रिकर्जन में बनाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कुछ मल्टीपल वैल्यूज आएंगी और मुझे लेना क्या है, उन सब का मिनिमम, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम सर्चिंग फॉर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस which I have to do in complete string s so that all the partitions become palindrome in itself, ठीक है। तो मैं सिंपली यही कर रहा हूँ। देखो करंट मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जो P1 प्रॉब्लम बनेगी वो बनेगी सिंपली I से K तक, उसकी करंट पार्टीशन की रेंज क्या हो जाएगी I to K, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ पार्टीशन को K, ये जो पार्टीशन है ये मेरा K है, ठीक है, K इंडेक्स है। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी K प्लस 1 टू J और प्लस 1 फॉर दिस डिवीजन जो मैंने अभी डिवाइड किया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा करंट जो मैंने पार्टीशन किया उसके अकॉर्डिंग मेरे कंप्लीट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और मुझे क्या करना है, सिंपली हर बार अपने आंसर को अपडेट करते जाना है और एंड में मेरे पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि होगा मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन फॉर पार्टीशनिंग ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम लेंथ I टू J और यू कैन से फ्रॉम इंडेक्स I टू J, उसका मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा कंप्लीट रिकर्जन। अब रिकर्जन में मुझे सिंपली करना क्या होता है, मुझे रिकर्जन में मेमोजाइज करनी होती हैं। जहाँ जहाँ रिकर्जन को मेमोजाइज करने के 2 सिंपल से बेसिक स्टेप हैं। सबसे पहले तुम जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो एक बार चेक कर लो जो करंट स्टेट है तुम्हारे रिकर्जन की या जो करंट सब प्रॉब्लम है तुमने वो कहीं ऑलरेडी कंप्यूट तो नहीं कर ली, ठीक है। कंप्यूट कर ली है तो तुम उसको सिंपली वहाँ से रिटर्न कर दो। और सेकेंड चीज़ क्या है कि अगर तुमने कंप्यूट नहीं किया है तो जहाँ पे भी तुम न्यू रिजल्ट कंप्यूट कर रहे हो उसको स्टोर कर दो और ये तुम्हारा कंप्लीट मेमोराइजेशन हो गया। अब ये तुम करोगे कैसे, तो सबसे पहले मुझे एक कंटेनर चाहिए जिसमें मैं स्टोर करने वाला हूँ रिजल्ट। तो यहाँ पे देखो वो कैसे बनाते हैं, तुम अपना रिकर्जन फंक्शन देखो और उसमें चेंजिंग वेरिएबल्स देखो। चेंजिंग वेरिएबल्स कौन कौन से आ रहे हैं, आई और जे। कैसे देखा ये, यहाँ पे मैंने एक रिकर्जन कॉल की, नीचे एक रिकर्जन कॉल में आओ, यहाँ पे क्या देखो स्ट्रिंग चेंज हुई, नहीं स्ट्रिंग सेम है, सिंपली चेंज हो रही है वैल्यूज ऑफ आई और जे। दैट्स वाई मैं बोलूंगा कि मेरे पास 2 चेंजिंग स्टेट्स हैं। आई और जे की मैक्सिमम वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, वो भी हो सकती हैं स्ट्रिंग की लेंथ,
ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, मैं शुरुआत से इस प्लेलिस्ट में बताते हुए आ रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली बोलूँगा कि मुझे एक कंटेनर चाहिए डीपी ऑफ 2 डायमेंशनल डीपी, जिसकी जो लेंथ हो जाएगी सिंपली आई और जे। ठीक है, तो डीपी ऑफ आई जे सिंपली स्टोर क्या करेगा, मेरा डीपी ऑफ आई जे स्टोर करेगा मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ पार्टीशनिंग स्ट्रिंग एस फ्रॉम इंडेक्स आई टू जे, सिंपली। ठीक है, फाइन। तो मैंने एक डीपी बना ली और सपोज मेरी स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ 1000 थी, तो मैंने 1000 लेंथ की 2 डायमेंशनल डीपी बना ली। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 2 स्टेप्स मेरे थे, तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को लिख के ही दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने सबसे पहले एक स्टैटिक डीपी बना ली, +1 मैंने फॉर सेफर साइड कर दिया है। ठीक है, अब मैं उसको कैसे इनिशियलाइज कर लूँगा, मैंने इनिशियलाइजेशन ऑफ डीपी एरे भी बताया था कैसे करते हैं। जो भी इम्पॉसिबल वैल्यू होती है, कभी भी क्या मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन की वैल्यू -1 आ सकती है? ऑब्वियसली नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस की मिनिमम वैल्यू 0 है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। दैट्स वाई मैंने सारी वैल्यूज -1 से इनिशियलाइज कर दी। ओके, फिर मैंने लिख दिया साइज ऑफ डीपी। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, जब भी मैंने कोई नई वैल्यू निकाली, मैं उस नई वैल्यू का रिटर्न 0 किया, तो मैं यहाँ पे डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू 0 भी बना दूंगा। ठीक है, तो ये डीपी ऑफ आई जे में स्टोर भी हो जाएगा और ये 0 रिटर्न भी हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सिंपली क्या चेक करना है, क्या मैंने ऑलरेडी कंप्यूट कर रखा है डीपी ऑफ आई जे? तो अगर वो -1 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ऑलरेडी कंप्यूटेड है, तो यहाँ से तुम सिंपली रिटर्न कर दोगे डीपी ऑफ आई एंड जे, नॉट के, सॉरी जे। ठीक है, फाइन। अब यहाँ से तो मैंने चेक कर लिया, अब मुझे सिंपली जो मैं नए रिजल्ट्स कंप्यूट कर रहा हूँ, मुझे वो रिजल्ट्स स्टोर करने हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी मुझे नए रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो स्टोर करने हैं। तो नया रिजल्ट मेरा कहाँ पे सिंपली मिल रहा है, एट द एंड। ये आंसर में मेरा क्या स्टोर्ड है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस फॉर द स्ट्रिंग फ्रॉम इंडेक्स आई टू जे, तो मैं यहाँ पे सिंपली वो भी स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने आंसर डीपी ऑफ आई जे में स्टोर भी कर दिया और वही चीज़ रिटर्न भी कर दी। अब ठीक है, मैंने इतना काम कर लिया और ये मेरा मेमोराइजेशन का कोड बन गया। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें सिंपली दिख रही होगी, काइंड ऑफ पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी मिल गई हमें। ठीक है, इसमें कुछ और थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। अब ऑप्टिमाइजेशन इसमें थिंक आउट करो कि हम कहाँ पे, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, तो ऑप्टिमाइजेशन कहाँ पे होता है? सिंपली रिकर्जन से हम ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को हम स्टोर करा के। ठीक है, कहाँ कहाँ हम फालतू में रिकर्जन कॉल कर रहे हैं, उसी को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और कोई चीज़ हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या, उसके ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को हम कहाँ कहाँ पे फालतू में रिकर्जन कॉल कर रहे हैं और हम उसे ऑप्टिमाइज कर दें। ठीक है, तो शुरुआत से इस फंक्शन को अगर तुम चेक करना शुरू करो, तो यहाँ पे ये तो बेस केस है, मच इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हम कुछ डिफीट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कुछ हम घटा नहीं सकते। यहाँ पे आए, ये भी मच इंपॉर्टेंट चीज़ है। अंदर आओ लूप के, यहाँ पे तुम एक चीज़ देखोगे कि तुम 2 फंक्शन कॉल कर रहे हो हर बार तुम 2 वैल्यूज कंप्यूट कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ दिस कंप्लीट प्रोसेस यू आर स्टोरिंग ओनली 1 वैल्यू, दैट इज फॉर आई एंड जे। ठीक है, तो तुम बार बार वैल्यूज कंप्यूट किसकी कर रहे हो? अब यहां से देखो, तुम्हें कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा। तुम वैल्यूज कंप्यूट कर रहे हो डीपी ऑफ आई और के की, एंड डीपी ऑफ k+1 एंड j की, बट तुम स्टोर वैल्यू एट द एंड किसकी कर रहे हो? डीपी ऑफ आई और j की खाली। तो क्या ये चीज यहाँ पे तुम्हारी फालतू में जा रही है? यहाँ पे सिंपली देखो, ये चीज यहाँ पे फालतू में जा रही है? हाँ, ऑब्वियसली जा रही है। आई और के की वैल्यू तुम कंप्यूट कर रहे हो, लेकिन तुम उसे कहीं पे क्या कर रहे हो, स्टोर नहीं कर रहे, तो ये चीज तुम्हारी फालतू जा रही है। और यहाँ पे दूसरी चीज देखो, k+1 j, तुम ये भी कंप्यूट कर रहे हो। एग्जैक्टली तुम्हें ये मिनिमम पैलिंड्रोम पार्टीशन दे क्या रहा होगा, तुम्हें डीपी ऑफ k+1 और j की वैल्यू ही तो दे रहा होगा, बट तुम इसे स्टोर नहीं कर रहे। तो सिंपली यहाँ पे तुम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, कैसे? इनको स्टोर करके। पहला ऑप्टिमाइजेशन हो गया स्टोर कर लो, दूसरा पार्ट ऑप्टिमाइजेशन की ऑब्वियसली स्टोर किया तो उसको यूज कर लो। यूज कैसे करते हैं? ऐसे। ठीक है, तो ये इसका हो गया तुम्हारा कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन।
तुम यहाँ पे कुछ कोड कैसे ऐड कर सकते हो अब ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो कोड ऐड करता हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा, मैंने 2 सब प्रॉब्लम्स ले रही थी, ठीक है। मैंने 2 सब प्रॉब्लम्स के लिए P1 और P2 2 वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है, फाइन। अब मैं सिंपली अंदर लूप के आऊँगा, मैं चेक करूँगा इफ़, और इनकी वैल्यू भी नॉट हैपनिंग वैल्यू दे दो जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इफ़ जो P1 है डज नॉट इज इक्वल्स टू -1 है, तो तुम सिंपली क्या कर दोगे, dp ऑफ i और k रिटर्न कर दोगे यहां से, ठीक है। और इसको अगर यहां पे तुम्हें ये भी नहीं लिखना, तुम यहां पे ऐसे लिख सकते हो dp ऑफ i और k, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, अपने यहाँ पे तुम सिंपली लिख सकते हो, तुम्हें अब ये वैल्यू कंप्यूट करनी है ना, ये वैल्यू तुम्हें कंप्यूट करनी है, तो तुम यहाँ पे सिंपली ऐसे लिखो dp ऑफ i k इज इक्वल्स टू, ये लिख दिया, और एक वैल्यू यहाँ पे भी ले लो, बस ऐसा इतना लिख दिया, ठीक है, फाइन। और इसी तरह तुम किसके लिए कर दोगे, सेम चीज k+1 और j के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अब तुम ये स्टेप कैसे कर सकते हो, इस स्टेप के लिए तुम्हें पूरी चीज नहीं लिखनी, dp ऑफ i k प्लस dp ऑफ k+1 और j+1, तो तुम बस इतनी चीज लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा कोड नहीं लिखा है, मैंने तुम लोगों को एक इंट्यूशन दे दिया है, तो पूरा कोड लिखो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट इन दिस ऑप्टिमाइज्ड कोड यू कैन जस्ट आस्क मी इन कमेंट एंड आई विल प्रोवाइड यू सूडो कोड फॉर दिस ऑल्सो। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट इन द होल concept of memoization and recursion and optimized memoization, you can ask me in comments. Thank you guys for watching this video and subscribe this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School. And if you haven't visited newtonschool.co, just go and check their pay after placement program and launchpad initiative. Thank you guys for watching.